Hello everyone, welcome back to my channel Mathematics Success Hub. Today we will be continuing with the solutions for the CSIR NET June 2024 Part B Mathematics paper. In this video, we will tackle some more challenging problems step by step to help you fully grasp the concepts. So let us dive right in. Now, the first question, this is about the Volta integral equation. So the Volta integral equation can be solved in various methods by using Laplace first method, by using Leibniz, and by resolvent kernel when it is a second kind. Now, when it is a convolution type means when it is an x minus t type. So we generally use Laplace. So here we can write it as in place of t we can write simply x, and here it is tau, we can write simply t. For to solve very easily, we get 1 by 2 plus, this is simply sine, we can write it as, let it be x minus t, and this is u of t, and dt, this is equal to simply sine. In place of t we can write it as x, and this is integration from 0 to x here. Now let us solve it by Laplace because it is a convolution type. When it is a convolution type, we simply हम क्या करते हैं, यहाँ पर simply हम t को put करते हैं 0, किसमें x minus t पे t को put करेंगे 0. So now Laplace use करेंगे, Laplace of what, 1 by 2 plus, this is simply sine, and here it is x here it is simply x because t को put करना है 0. So we get simply sin x, and this is u of t. Here मैंने Laplace यूज किया है, and this is equal to Laplace of sin x. Now 1 by 2, what is Laplace of 1? This is 1 by s. क्योंकि हम जानते हैं what is Laplace of 1? Laplace of 1 is 1 by s. And plus, this is plus, what is Laplace of sin x? Sin x का Laplace होता है 1 upon s square plus a square. Here a square is 1 square, that is 1, and यहाँ पे मिलेगा Laplace of ut, that is simply u bar, and this is equal to Laplace of sin x, this is 1 upon s square plus 1, because हम जानते हैं Laplace of sin at किसके बराबर होता है, this is 1 upon s square plus a square. Now this is simply s square cross multiply s square plus 1, and plus this is 2s upon, this is 2s and s square plus 1, this is u bar, and this is 1 upon s square plus 1. S square plus 1, s square plus 1 cancel. So we get, what we get? We get u bar, this is equal to simply, this is 2s upon, this is s plus 1 whole square. This is u bar. Now let us solve it by partial fraction. Here s upon, let us solve this, s upon s plus 1 whole square. This is equal to a upon s plus 1 and plus b upon s plus 1 whole square. Now to solve it by trick, we get, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर s plus 1 जो original है, s plus 1 whole square पुट कर लेंगे 0. सो वो गेट s इज इक्वल टू -1. तो यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर इस टर्म में s इज इक्वल टू -1 रखना है, जहाँ पर ये 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो 0 मिलेगा, यहाँ पर नहीं रखना है, यहाँ पर रखना है, वो गेट -1. दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा, सिंपली s इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर दिस इज इक्वल टू b. सो b का वैल्यू क्या मिलेगा, क्योंकि ये वाला टर्म मैं निकाल रहा हूँ, so that means b is equal to -1. Now to find the value of a, हम क्या करेंगे, यहाँ पर put s is equal to 0. हम इसमें s का वैल्यू 0 रखेंगे, तो वो get 0 is equal to, this is a upon 0 plus 1, that is 1, and plus this is 0, and यहाँ पर चूंकि b का वैल्यू तो ऑलरेडी
बी का वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू तो ऑलरेडी -1 आया था, बी इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू -1 एंड एस का वैल्यू तो 0 है, दैट मीन्स सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हियर ए का वैल्यू क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू 1, सो दैट मीन्स u बार को मैं लिख सकता हूँ एज u बार इज इक्वल टू दिस इज 2 एंड a का वैल्यू a is 1, this is 2 upon this is simply s plus 1 and b का वैल्यू -1 है, b is equal to -1, so this is -2 upon यहाँ पे क्या मिलेगा 2 upon this is s plus 1 whole square. Now simply we get u. What is u? u यहाँ पर क्या मिलेगा, Laplace inverse, क्योंकि u बार ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो we get Laplace inverse of 2 upon s plus 1 and minus Laplace inverse of 2 upon s plus 1 whole square. So that means this is simply u is equal to this is L inverse 2, what is Laplace inverse of 1 by s plus 1? This is simply e power minus t, because हम जानते हैं Laplace inverse of 1 by s minus a, this is e power at. चूँकि यहाँ पर s plus 1 है, so वो क्या राइट एज s minus -1. Now and minus what is Laplace inverse? So this is here Laplace inverse. This is 2 e power minus t and Laplace inverse of this. Now by first shifting theorem जब हम इसमें लगाएंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं Laplace of t power n, this is equal to simply n factorial upon s power n plus 1. Now by first shifting theorem, what is Laplace of t power n e power at? This is simply n factorial upon s के बदले हम लिखते हैं s minus a whole power n plus 1. So what is now Laplace inverse of 1 upon s minus a whole power n plus 1? किसके बराबर मिलेगा? This is t power n e power at upon n factorial. So यहाँ पर Laplace inverse of 2 upon s plus 1, तो a के बदले क्या है यहाँ पर -1 है, सो दिस इज सिंपली t पावर n, चूंकि n का वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पर 1 plus 1 is 2, सो दिस इज e पावर a का वैल्यू है माइनस, दैट इज -t एंड n का वैल्यू है 1, दैट मीन्स वी गेट दिस, बट यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 भी आएगा. नाउ वी हैव टू फाइंड सिंपली u of 1. सो व्हाट इज u of 1? सो u of 1 t के बदले 1 रखेंगे, 2 e पावर -1 minus 2 e power -1, this cancel, we get 0, so 0 is the correct answer and remaining are false. Now next हम देखेंगे यहाँ पर, next क्या बोलता है यहाँ पर कि यहाँ पर एक नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, which of the following statement is true? Now if a is 1 1 1 1 का मतलब क्या होता है, अगर a इंजेक्टिव हुआ तो, then अगर a इंजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ ए किसके बराबर मिलेगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एम. क्योंकि यहाँ पर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर क्या होता है, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए किसके बराबर होता है, इस डायमेंशन के बराबर, यहाँ पर एम के बराबर होता है. ये प्रॉपर्टी है बाय, दिस इज अ रैंक नलिटी थ्योरम. क्योंकि यहाँ पर 1 1 है, 1 1 का मतलब क्या है, दिस इज अ नॉन सिंगुलर है तो नलिटी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. अगर नॉन सिंगुलर है तो नलिटी क्या मिलेगा, ये तो 0 मिलेगा, नलिटी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. तो व्हाट इज द रैंक ऑफ ए, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एम. सो अगर रैंक एम है बट ये क्या बोल रहा है, नॉट ऑन टू, तो ऑन टू नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट ए सब्जेक्टिव. सो अगर सब्जेक्टिव नहीं है इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए मस्ट बी लेस देन एन. सो अगर रैंक ऑफ ए लेस देन एन है, चूंकि रैंक किसके बराबर आ रहा है, चूंकि मैंने बोला है रैंक एम के बराबर आ रहा है ड्यू टू 1 1, सो दैट मीन्स ये जो एम है, एम किसके बराबर है, रैंक ऑफ ए के बराबर है. चूंकि रैंक ऑफ ए ऑन टू नहीं है तो रैंक क्या होना चाहिए, लेस देन एन होना चाहिए. क्योंकि अगर ये ऑन टू होता तो रैंक किसके बराबर होता,
इसके कोडोमेन के डायमेंशन के बराबर होता है, चूंकि ऑन टू नहीं है दैट मीन्स इसका रैंक आएगा लेस देन n। सो अगर रैंक लेस देन n है तो वी गेट हमें क्या मिलेगा m लेस देन n या m लेसर इक्वल टू n भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है m इज ग्रेटर देन n दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज फॉल्स। नाउ इफ a इज ऑन टू, अब सेकंड क्या बोल रहा है कि a इज ऑन टू, अगर ऑन टू है तो इसका मतलब क्या है, ओब्वियसली अगर ऑन टू है तो रैंक ऑफ ए क्या मिलेगा, कोडोमेन के डायमेंशन के बराबर मिलेगा, दैट मीन्स n के बराबर मिलेगा। अगर रैंक n है, चूंकि ये क्या बोल रहा है यहाँ पर a इज नॉट 1 1, चूंकि 1 1 नहीं है, यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है कि नॉट 1 1। अगर 1 1 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये जो नलिटी है ये तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या मिलेगा, इसका मतलब मिलेगा ये जो m है, ये जो m है ये क्या हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन हो जाएगा रैंक ऑफ a से। दैट मीन्स चूंकि रैंक ऑफ a किसके बराबर है, n के बराबर है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या मिलेगा, m मस्ट बी ग्रेटर देन n। ये क्या बोल रहा है, m is less than n, that means this is again false option. Now the third option is a is bijective। bijective का मतलब क्या होता है, 1 1, एक तो 1 1 होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए। जब ये 1 1 भी मिलेगा ऑन टू भी मिलेगा, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए क्या मिलेगा, ओब्वियसली m मिलेगा, क्योंकि ऑन टू भी है तो n मिलेगा। इसका मतलब क्या है, m इज इक्वल टू n, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज ट्रू। नाउ फोर्थ ऑप्शन, इफ a इज 1 1, अगर a 1 1 है तो क्या मतलब है, a इज इंजेक्टिव, तो अगर इंजेक्टिव है तो रैंक ऑफ a क्या मिलेगा, ओब्वियसली रैंक ऑफ a m मिलेगा बिकॉज 1 1 है। ना ये क्या बोल रहा है कि अगर 1 1 है तो इसका मतलब है m n के बराबर आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लेता हूँ से R2 to R3। ना यहाँ पर जो मैट्रिक्स मिलेगा, लेट a इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं मैट्रिक्स लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स मिलेगा दिस इज 3x2 है ना। यहाँ पर जो मैट्रिक्स मिलता है पहले ये आता है फिर ये आता है, दैट मीन्स 3x2 मैट्रिक्स मिलेगा। सो इसका मतलब ये हुआ, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है फॉर एग्जांपल 1 0 0 1 एंड 0 0। अगर आप देखेंगे a में, सो व्हाट इज रैंक ऑफ a, ऑब्वियसली इट इज 2। अगर रैंक ऑफ a 2 है, बाय रैंक नलिटी थ्योरम व्हाट इज रैंक ऑफ a प्लस नलिटी ऑफ a, ये तो 2 के बराबर आना चाहिए बाय रैंक नलिटी थ्योरम। क्योंकि यहाँ पर रैंक 2 है तो 2 अगर रैंक है दैट मीन्स नलिटी को होना चाहिए 0, तभी तो ये 2 के बराबर मिलेगा। इसका मतलब क्या है, नलिटी 0 है, नलिटी 0 है कि इसका मतलब क्या मिलेगा 1 1। अगर नलिटी 0 है implies that it is 1 1। तो अगर 1 1 है, ये क्या बोल रहा है कि m इज इक्वल टू n के बराबर है। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2 इज नॉट इक्वल टू 3, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज फॉल्स। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर बोल रहा है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, दिस इज सिंपली अ हीट इक्वेशन। ओके, नाउ इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बाय मेथड से भी कर सकते हैं या इजी मेथड है इसका, हम लैप्लास यूज़ करेंगे। सो लैप्लास से इजी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पार्शियल यू बाई पार्शियल टी, पार्शियल यू बाई किसके बराबर है, दिस इज चूँकि k यहाँ पर 1 है ना, k u x x होता है, दिस इज पार्शियल 2u बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर। नाउ हम लैप्लास यूज़ करेंगे इसमें, लैप्लास ऑफ दिस एंड लैप्लास ऑफ दिस। लैप्लास ऑफ पार्शियल यू बाई पार्शियल टी किसके बराबर होता है, दिस इज सिंपली एस यू बार माइनस यू एक्स ज़ीरो, एंड इसका लैप्लास किसके बराबर होता है, दिस इज सिंपली डी स्क्वायर यू बार, डी स्क्वायर यू बार। ओके, नाउ दिस इज एस यू बार माइनस व्हाट इज यू एक्स ज़ीरो, यहाँ पर गिवन है यू एक्स ज़ीरो, दिस इज साइन 4x प्लस x प्लस 1 and this is equal to d square u bar. So we can write it as s u bar minus d square u bar, this is equal to sin 4x plus x plus 1. So यहाँ से u bar कॉमन निकलेगा तो क्या मिलेगा, u bar is equal to, यहाँ से मिलेगा s माइनस डी स्क्वायर, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे हम, वी गेट दिस इज साइन 4x अपॉन
दिस इज एस माइनस डी स्क्वायर, चूँकि मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा, एंड प्लस दिस इज एक्स प्लस 1 एंड यहाँ से भी डिवाइड हो जाएगा एस माइनस डी स्क्वायर। ना हम जानते हैं यहाँ पर डी के बदले हम क्या रखते हैं माइनस ए स्क्वायर, सो वी गेट साइन 4x अपॉन एस माइनस माइनस 4 स्क्वायर दैट इज प्लस 16 आएगा, माइनस 4 स्क्वायर दैट इज माइनस माइनस प्लस, दिस इज प्लस 16 आएगा यहाँ पर, एंड प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एज x प्लस 1, एंड यहाँ से अगर मैंने s कॉमन निकाला है तो 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन एस मिलेगा। सो वी गेट, यहाँ से क्या मिलेगा, ये तो सेम मिलेगा, इसका कोई, उसके बाद अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज 1 अपॉन एस एंड दिस इज 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन एस होल पावर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई एस, दिस इज, इसको यहाँ पर होल्ड रखेंगे, 1 माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं व्हाट इज 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस 1, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू, so that means this is 1 plus x square so on up to x plus 1. So this is simply 1 upon s, x plus 1 into 1 is x plus 1 एंड प्लस, क्योंकि दो बार जब डेरिवेटिव कर लेंगे तो ज़ीरो मिलेगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं हो जाएगा, मिलेगा, एंड यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से सेम साइन 4x अपॉन एस प्लस 16। नाउ अब हम क्या करेंगे, क्योंकि u बार है, जब हम बार हटाएंगे तो क्या मिलेगा, लैप्लास इनवर्स हो जाएगा, सो वी गेट u सिंपली u x t क्या मिलेगा, क्योंकि दिस इज फंक्शन ऑफ x एंड t हियर, सो u x t मिलेगा, दिस इज लैप्लास इनवर्स ऑफ, दिस इज, क्योंकि साइन 4x तो बाहर आएगा, लैप्लास इनवर्स s का होता है, s के साथ लैप्लास लगेगा इनवर्स, दिस इज s प्लस 16 इसका लैप्लास इनवर्स, एंड प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इज प्लस हियर, this is x plus 1 and Laplace inverse of 1 upon s, this is obviously 1, so this is equal to, यहाँ पर हम लिखेंगे भी Laplace inverse of 1 upon s, so this is equal to sin 4x Laplace inverse of 1 upon this, हम जानते हैं Laplace of e पावर a t किसके बराबर होता है, 1 बाई एस माइनस ए, सो व्हाट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई एस माइनस ए, दिस इज e पावर a t, तो यहाँ पर s माइनस a होना चाहिए, दैट मीन्स s माइनस 16 मिलेगा, सो दिस इज सिंपली e पावर माइनस 16 t एंड प्लस दिस इज x प्लस 1 and multiply by 1 मिलेगा. Now we have to find simply pi 8 and 1 and minus pi 8 1. So let us find it. U of pi upon 8 x के बदले क्या रखना है, pi upon 8 and t के बदले क्या रखना है, 1 रखना है, फिर प्लस करना है ये 1 and प्लस u of, अब x के बदले माइनस पाई बाई 8 एंड t के बदले 1, ये हम सॉल्व करेंगे, दिस इज सिंपली साइन मिलेगा यहाँ पर, एंड 4 x के बदले पाई बाई 8, ओके, e पावर माइनस 16 t के बदले 1 आएगा, प्लस x के बदले पाई बाई 8 एंड प्लस 1, फिर दूसरा ये वाला हम रखेंगे इसमें, दिस इज साइन 4, यहाँ पर माइनस पाई बाई 8 मिलेगा, e पावर माइनस 16 t यहाँ पर भी क्या है 1 है, एंड दिस इज प्लस, फिर क्या मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, x के बदले क्या है माइनस पाई बाई 8, सो यहाँ पर माइनस पाई बाई 8 मिलेगा, प्लस माइनस पाई बाई 8 एंड प्लस 1। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस टर्म इज नेगेटिव, दिस टर्म इज पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो वो गेट 2, सो दैट मीन्स ये जो ऑप्शन नंबर 1 है दिस इज ट्रू। ये बोल रहा है कि ये इसके बराबर हो जाएगा, तो बराबर तो नहीं हो जाएगा, ये बोल रहा है कि अगर मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, चूँकि ये सेम आने पर 2 आ रहा है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो नहीं आएगा, एंड ये नेगेटिव बोल रहा है, दिस इज अगेन अ फॉल्स ऑप्शन, सो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज ट्रू, रिमेनिंग आर फॉल्स। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये बोल रहा है कि
कंसिडर सेट ए x बिलोंग्स टू Q. सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे √2 - 1 x is less than √2 + 1. We have to find the supremum and infimum of this set. So let us solve it for x. X is less than √2 + 1 upon what? Upon √2 - 1. Now इसको अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? दिस इज √2 + 1 एंड नीचे भी क्या मिलेगा? √2 + 1. सो ये क्या मिलेगा? दिस इज √2 + 1 होल स्क्वायर एंड नीचे क्या मिलेगा? a + b a - b, दिस इज a² - b². सो दिस इज इक्वल टू 2 + 2√2 + 1. यहाँ से 1 मिलेगा, 2 - 1. सो दिस इज सिंपली 2 + 1 इज 3 + 2√2. सो इसका मतलब ये जो सेट मिलेगा, दिस इज 0 लेस देन x लेस देन व्हाट? 3 + 2√2. 0 is less than x less than 3 + 2√2. So that means ये क्या मिलेगा यहाँ पर? ये तो सुप्रीमम मिलेगा एंड दिस इज द इन्फिमम. वेदर ये जो सुप्रीमम है ये तो सेट क्यू में तो अगर ये नहीं भी आ रहा है, सेट ए में अगर नहीं आ रहा है, बट स्टिल ये सुप्रीमम है. एंड ये जो 0 है ये सेट में नहीं आ रहा है, बट फिर भी ये क्या है? दिस इज एन इन्फिमम. दैट मीन्स 3 + 2√2. ये क्या मिलेगा? 3 + 2√2 इज अ सुप्रीमम. सो ऑप्शन टू क्या है? ट्रू है. ये जो रिमेनिंग ऑप्शन है ये क्या है? दीज आर फॉल्स. नेक्स्ट, consider the initial value problem. y dash of x, this is equal to simply yx plus epsilon and mod, and x belongs to R, and y of 0 is equal to 0. Y of 0 is equal to y of 0. Now ये जो थ्योरम है, दिस इज ऑन द, ये किस पर बेस्ड है? पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम. दिस इज सिंपली ऑन व्हाट? ऑन पिकार्ड थ्योरम. ऑन पिकार्ड्स, चूंकि ये पूछ रहा है कि सोल्यूशन है या नहीं है. सिंपली दिस इज पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम. ये जो क्वेश्चन है ये इसी पे पूछा गया है. वो भी पूरा थ्योरम नहीं है, क्योंकि पिकार्ड थ्योरम में बता रहा है कि अगर यूनिक सोल्यूशन मिलेगा तो किस इंटरवल में मिलेगा. क्योंकि यहाँ पर इंटरवल नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है कि अगर सोल्यूशन है तो इन्फिनाइट सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है, सिंपली ये पूछ रहा है. नाउ अगर हम देखेंगे ये जो पिकार्ड्स थ्योरम ये क्या बोलता है? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये जो dy/dx है, dy/dx, दिस dy/dx, दिस इज इक्वल टू से सम f of x फंक्शन. अगर ये फंक्शन एंड y of 0 इज इक्वल टू y0, अगर ये कंटिन्यूअस है किसी रेक्टेंगल में, क्योंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू r, दैट मीन्स फॉर ऑल x ये क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए. एंड इट सेटिस्फाइज द लिपलीज कंडीशन इन सम रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पर r है. दैट मीन्स अगर लिपलीज कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा और कंटिन्यूअस भी मिलेगा, दैट मीन्स इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन. इसका के पास क्या मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन मिलेगा. लेट अस चेक फर्स्ट, क्या ये कंटिन्यूअस है? ओब्वियसली ये जो √y ऑफ x प्लस एप्सिलॉन है, दिस इज कंटिन्यूअस, क्योंकि दिस इज इंडीड कंटिन्यूअस. दिस इज, ये तो कंटिन्यूअस है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा ये इन y फॉर ऑल y. हर एक y के लिए क्या मिलेगा? ये कंटिन्यूअस मिलेगा, मॉडुलस है. नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या ये लिपलीज कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? लेट अस सॉल्व इट. लिपलीज कंडीशन हम इस तरह भी निकाल सकते हैं. अगर पार्शियल है बाई पार्शियल y, अगर ये बाउंडेड आएगा, लेस आर इक्वल टू k मिलेगा फॉर सम k, दैट मीन्स दिस इज सेटिस्फाई द लिपलीज कंडीशन. बट लेट अस चेक इट. पार्शियल है बाई पार्शियल y क्या मिलेगा? दिस इज ओब्वियसली 1/2 रूट ऑफ y प्लस एप्सिलॉन. एंड y प्लस एप्सिलॉन चूंकि यहाँ पर मॉड है, क्या है? y प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पर मॉडुलस है यहाँ पर, तो मॉडुलस का भी यहाँ पर होगा इंटरनल डिफरेंशिएशन. दैट मीन्स दिस इज सिंपली सिग्नम ऑफ y प्लस एप्सिलॉन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? नाउ पार्शियल बाय पार्शियल y ये मिलेगा.
सो अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पर, चूंकि ये जो डेरिवेटिव है ये टेंड करेगा एज y अप्रोच टू, ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा अगर मैंने y अप्रोच किया है एप्सिलॉन, सो मीनिंग दैट इट डज नॉट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई कहाँ पे नहीं हो जाएगा अगर मैंने y का वैल्यू माइनस एप्सिलॉन लिख, अगर y का वैल्यू माइनस एप्सिलॉन आएगा दैट मीन्स उस टाइम ये जो लिपलीज कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा। किस वैल्यू पे? ओनली फॉर व्हाट? ओनली फॉर y इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन। सो दैट मीन्स अगर हम बात कर लेंगे ये जो पिकार्डिस थ्योरम, सो पिकार्डिस थ्योरम कैन नॉट गारंटी द यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन फॉर व्हाट? फॉर y0 इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन। माइनस एप्सिलॉन पे ये गारंटी नहीं देगा कि यूनिक सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। ओके ना, ऑप्शन 1 अगर हम देखेंगे ये क्या बोल रहा है कि फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट फॉर ऑल, ये बोल रहा है कि फॉर ऑल y0 बिलोंग्स टू r, हर एक y0 बिलोंग्स टू r के लिए ये इनफिनाइट सोल्यूशन देगा, मतलब कि मोर देन वन सोल्यूशन देगा। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर एज वी नो y0 अगर बिलोंग कर रहा है r में फॉर ऑल, क्योंकि y0 अगर मैंने माइनस एप्सिलॉन लिया है तो उस टाइम तो ये यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ये क्या बोल रहा है कि हर एक y0 के लिए मोर देन वन सोल्यूशन मिलेगा, तो ये तो फॉल्स है फिर, क्योंकि ये बोल रहा है कि फॉर ऑल के लिए मतलब इसमें तो ये भी आएगा, तो इस पे तो ये यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इस पर तो यूनिक सोल्यूशन नहीं दे रहा है, दैट मीन्स ये तो इन्फिनाइट सोल्यूशन कहाँ मिलेगा फिर फॉर ऑल, तो फॉर ऑल के लिए तो ये तो फॉल्स है ना। अगर हम H2 देखेंगे, H2 क्या बोल रहा है कि देयर इज ए y0 बिलोंग्स टू r, एक y0 बिलोंग्स टू r आएगा सच दैट कि फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज मोर देन वन सोल्यूशन, तो देयर इज ए y0 बिलोंग्स टू r, हाँ मिलेगा y0 मिलेगा। अगर मैंने y0 को रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रखा है r माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि माइनस एप्सिलॉन पे प्रॉब्लम करेगा, वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा लिपलीज कंडीशन, क्योंकि बाकी जितने भी पॉइंट्स है वहाँ पे तो एग्जिस्ट हो जाएगा, वहाँ पे लिपलीज कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं इसके बगैर वहाँ पे अगर लिपलीज कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, तो बाय लिपलीज कंडीशन, बाय लिपलीज एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम ये क्या देगा? ये तो यूनिक सोल्यूशन देगा। तो उस टाइम पे क्या देगा ये? अगर ये एग्जिस्ट हो जाएगा, r माइनस इस वैल्यू पे एग्जिस्ट हो जाएगा, देयर इज ए वैल्यू, हाँ एग्जिस्ट हो जाएगा, बट उस टाइम पे क्या मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ये क्या बोल रहा है कि मोर देन वन सोल्यूशन, दैट मीन्स दिस इज अगेन अ फॉल्स ऑप्शन, दैट मीन्स बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर, कंसिडर यहाँ पर एक 10 क्रॉस 10 रियल मैट्रिक्स है, एज्यूम द रैंक ऑफ ए इज 7। सो यहाँ पर अगर रैंक 7 है, हम एक एग्जाम्पल से भी हम कर सकते हैं इसको, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल से। यहाँ पर बेस्ट होता है कि हम एक निलपोटेंट मैट्रिक्स लेते हैं टू मेक इट ईजी। सो लेट अस सपोज दिस इज 0 1 एंड हियर इट इज़ 10 क्रॉस 10 लेना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर हम लेंगे यहाँ पर 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7, फिर हम लेंगे यहाँ पर 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0, again 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, similarly 0 0 0 0, here 0 1 0 0, फिर 0 0 0 0 0, यहाँ पर 1, चूँकि यहाँ पर रैंक 7 है तो 7 तक मुझे यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 0 एंड 1 यहाँ पर मिलेगा। ओके, नाउ रिमेनिंग जो मिलेगा 0 0 जो रिमेनिंग 3 रो है वो क्या मिलेगा? वो तो सारे के सारे 0 मिलेंगे। क्यों मिलेंगे 0? टू मेंटेन द रैंक 7 है, 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है। रैंक कितना है? 1 2 3 4 5 6, सो रैंक ऑफ ए, हियर द मैट्रिक्स इज 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स। व्हाट इज रैंक ऑफ ए? रैंक ऑफ ए इज हियर 7।
ये क्या बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे a पावर 7, ये बोल रहा है कि a पावर 7 इज इक्वल टू 0। सो a पावर 7 जब हम निकालेंगे, जब हम a स्क्वायर निकालेंगे, ये जो 1 1 1 है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये इस वाले डायग्राम में ना, सुपर डायग्राम, ये जो है दूसरा डायग्राम, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 0 0 0, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर हम a क्यूब निकालेंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा a पावर 4, a पावर 5, a पावर 6, a पावर 7। सो दैट मीन्स अगर हम a पावर 7 जब निकालेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है ये कुछ इस तरह मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 1 आएगा एंड यहाँ पर 1 आएगा एंड रिमेनिंग जो है वो 0 आएंगे। ये मिलेगा a की पावर 7 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये क्या मिलेगा, ये बोल रहा है कि a पावर 7 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इज a फॉलोज ऑप्शन। ओके, नाउ ए मस्ट हैव ए नॉन जीरो एगन वैल्यू, क्योंकि निलपोर्ट मैट्रिक्स है तो इसके सारे एगन वैल्यूज क्या हैं, 0 है, दैट मीन्स दिस इज अगेन अ फॉलोज ऑप्शन। उसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि ए स्क्वायर v इज नॉट इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर पूरा है देयर एग्जिस्ट इज अ वेक्टर v बिलोंग्स टू R10 साइज दैट av इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर v इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर ये। तो लेट अस सपोज अगर मैं एक वेक्टर लेता हूँ, यहाँ पर एक नॉन ज़ीरो वेक्टर अगर मैंने ले लिया है, लेट अस सपोज दैट वेक्टर हम इस तरह लेंगे, यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा रिमूव करेंगे यहाँ पर, सो अगर मैंने एक नॉन ज़ीरो वेक्टर ले लिया है, ए तो ऑलरेडी मैंने लिया है, सो लेट अस सपोज दैट v यहाँ पर एक वेक्टर में लेता हूँ नॉन ज़ीरो, लेट अस राइट इज लाइक दिस 0 0 1 0 0 1 and remaining are 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। now जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे AV, सो ये क्या मिलेगा, this is a 10 cross 10 and this is obviously 10 cross 1 matrix, so we get a 10 cross 1 matrix remaining। so again यहाँ पर एक वेक्टर मिलेगा इस तरह, वो क्या होगा, वो 10 cross 1 हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पहला वाला तो 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे 1 आ रहा है, थर्ड कहाँ पर है, यहाँ पर, दैट मीन्स जो सेकंड एलिमेंट है ये मिलेगा यहाँ पर 1, जो रिमेनिंग है वो क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे, ओबियसली 0 मिलेंगे। सो अगर हमने यहाँ पर निकाला है a इंटू वी, लेट दिस इज वेक्टर v, दिस इज, ये क्या है, ये v वेक्टर है, तो av जब मैंने निकाला है av इज नॉट इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो रहा है, ए वी इज़ नॉट इक्वल टू 0। बट अगर मैंने ए स्क्वायर निकाला है तो ए स्क्वायर के लिए क्या मिलेगा, ए स्क्वायर के लिए ये जो 1 1 1 1 है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये तो इस वाले पे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तीसरी पोजीशन पर 1 है, तो अब तो यहाँ पर तीसरी पोजीशन पे 1 नहीं आएगा ना, यहाँ पर था 1, अब ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो तीसरी पोजीशन पे 1 नहीं है। अगर हमने यहाँ पर ए स्क्वायर निकाला है, बट ये जो है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये तो तीसरी पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, नाउ लेट अस, हम यहाँ पर इस तरह निकालेंगे, ए स्क्वायर जो है वो इस तरह आएगा, ये जो ए स्क्वायर है यहाँ पर 0 था, क्योंकि एक शिफ्ट होता है, जब भी हम स्क्वायर कर लेंगे नीलपुरन में एक शिफ्ट होता है, 0 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली बाकी क्या मिलेंगे इसकी 0 0, एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 था तीसरी पोजीशन पे, ये कहाँ पे आएगा, ये फोर्थ पोजीशन पे आएगा 0 0, एंड बाकी जो है वो 0 आएंगे, एंड यहाँ पर भी इस तरह 1 आएगा। सो ये है ए स्क्वायर, एंड जब मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करूँगा 0 0 1 के साथ, 0 0, क्योंकि v यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर मैंने ले लिया है, इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे ए स्क्वायर वी, व्हाट इज ए स्क्वायर वी, क्योंकि तीसरी पोजीशन पर 1 है, यहाँ पर भी तीसरी पोजीशन पर 1 है, तो 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पर 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, दैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0। बट ये क्या बोल रहा है कि अगर ए वी इज इक्वल टू, ए वी नॉट इक्वल टू 0 है, ओब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 है, बट ये बोल रहा है कि ए स्क्वायर वी 0 के बराबर आएगा, यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, दिस इज फॉलोज ऑप्शन। सो देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर सच दैट ए स्क्वायर वी इज नॉट इक्वल टू 0, ओब्वियसली मिल तो रहा है, देयर एग्जिस्ट बोल रहा है तो मिल तो रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन 2 क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, नेसेसरली पूछा है ना। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये बोल रहा है कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ द रियल सॉल्यूशन ऑफ e पावर x प्लस x इज इक्वल टू 1।
ना अगर हम इसका लेट अस डिटरमाइन फॉर हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स, ये जो इक्वेशन है लेट अस सपोज इट इज एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस एक्स. ओके, नाउ व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स? अगर हमने इसका लेट अस फर्स्ट कंसिडर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन टू अंडरस्टैंड. डेरिवेटिव हम जब हम निकालते हैं तो हम यहाँ पर क्यों निकालते हैं? to understand this monotonicity, whether it is a monotonic or not. So that means f dash of x is equal to d by dx of what? D by dx of e power x plus x. So that means this is simply e power x plus 1. So इसका मतलब क्या है? चूंकि e power x जो है ये तो पॉजिटिव होता है, दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव एंड 1 इज कॉन्स्टेंट. सो दैट मीन्स ये जो f dash of x है, f dash of x जो है e power x plus 1, दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. इसका मतलब ये हुआ ये जो f of x है दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, खाली इंक्रीजिंग नहीं है, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है सो इसका मतलब ये हुआ दैट इट मीन्स ये कुछ इस तरह का फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. दैट मीन्स इट कैन क्रॉस एनी हॉरिजेंटल लाइन. ये जो मुझे निकालना है ना, मुझे वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, चूंकि एफ ऑफ एक्स मैंने इसका नाम रखा है. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स चूंकि एफ ऑफ एक्स हम बोलते हैं दिस इज इक्वल टू वाई, सो वी हैव टू सिंपली फाइंड वाई इज इक्वल टू 1. तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर है सो इट कैन क्रॉस एनी हॉरिजेंटल लाइन वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 एट मोस्ट 1. एक पॉइंट पे ये इसको क्या करेगा? क्रॉस करेगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. अगर ये इंक्रीजिंग होता फिर तो पॉसिबल नहीं भी हो सकता, बट ये क्या बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर दिस प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी. दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स क्रॉसेस द लाइन y इज इक्वल टू 1, एक पॉइंट पे करेगा, ओनली 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे इसको क्रॉस कर लेगा. दैट मीन्स इसकी कार्डिनलिटी क्या मिलेगा? दैट मीन्स इसकी जो सेट की कार्डिनलिटी है वो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट आ रहा है जहाँ पर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है. सो दैट मीन्स इसका जो एफ ऑफ एक्स जो इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सो दैट मीन्स इट डज सो एग्जैक्टली वंस. सो सोल्यूशन इज ओनली 1. बाकी बोल रहे हैं कि काउंटेबली इन्फिनाइट है, तो ज़रूरी नहीं है, अनकाउंटेबल है. सो रिमेनिंग ऑप्शंस आर फॉल्स. नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, ये बोल रहा है कि लेट एस बी ए डेनस सबसेट ऑफ आर. क्योंकि डेनस होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए ना. डेनस चूँकि हम जनरली बोलते हैं जो डेनस सेट होता है, डेनस इज सिंपली एनी टू रियल नंबर्स नो मैटर हाउ क्लोज दे आर, यू कैन ऑलवेज फाइंड अ रैशनल नंबर. अगर हम बात कर लेंगे क्यों की, अगर हम बोलेंगे कि क्यों डेनस है, तो कोई भी सेट अगर हम बोलेंगे ये क्या है? डेनस है, तो दैट मीन्स एनी टू रियल नंबर्स नो मैटर हाउ क्लोज दे आर देयर इज ऑलवेज अ पॉइंट फ्रॉम दैट सेट, जो भी फिर डेनस होता है. तो हम जानते हैं क्योंकि क्यों डेनस होता है आर में, क्यों कॉम्प्लीमेंट रैशनल ये भी क्या होता है? डेनस आर में होता है. बिकॉज ऐसा क्यों होता है? क्यों डेनस होता है? बिकॉज बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स no matter how close they are, there is always a point, from what? From Q. So there we can find a rational number, क्योंकि हम जानते हैं there are infinitely number of rational numbers between any two real numbers. Okay, similarly irrational के लिए भी मिलेगा. नाउ ये था डेफिनेशन ऑफ डेनस सेट. तो हम जानते हैं अब हम ये जो सेट S लेंगे, सिंपली हम क्या कंसिडर करेंगे? लेट S इज इक्वल टू Q बिकॉज Q इज डेनस इन R. सो S इज इक्वल टू Q. F यहाँ पर फंक्शन है R टू R. ओके, नाउ G यहाँ पर एक फंक्शन है. व्हाट इज G? G यहाँ पर फंक्शन है कहाँ से कहाँ? S टू R. दैट मीन्स दिस इज अगेन Q टू R. सच दैट ये बोल रहा है कि G ऑफ X दिस इज इक्वल टू F ऑफ X. Which of the following statement is necessarily true? कौन सा स्टेटमेंट necessarily true है? अगर हम स्टेटमेंट 1 देखेंगे, ये बोल रहा है कि f is continuous on the set S. तो S मैंने क्या ले लिया है? Q ले लिया है, continuous है. एंड देन क्या बोल रहा है कि f continuous होगा R माइनस S.
आर माइनस एस में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, दैट मीन्स ये क्यू कॉम्प्लीमेंट में कंटिन्यूस होगा। अगर मैं एक फंक्शन यहाँ पर लेता हूँ फॉर एग्जांपल फॉर वन, अगर मैंने एक फंक्शन ले लिया है सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 1, ये तो हम जानते हैं ये फंक्शन अगर 0 है तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू क्यू, अगर 1 है तो एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू। चूँकि ये जो फंक्शन है दिस इज कंटिन्यूस ऑन क्यू, बिकॉज क्यों कंटिन्यूस है, इट इज़ कॉन्स्टेंट 0 ऑन एस इज इक्वल टू क्यू। हर एक पॉइंट क्यू के लिए, हर एक पॉइंट के लिए 0 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज ए कंटिन्यूस ऑन क्यू। एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्यू, एस के बदले क्यू है। देन बोल रहा है कि एफ कंटिन्यूस होगा क्या, इसके लिए कंटिन्यूस होगा, इसके लिए तो कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि अनीर इरेशनल पॉइंट, ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये तो सडनली जंप कर रहा है, कहाँ पे, 1 पे जंप कर रहा है। सो ये तो डिस्टर्ब कर रहा है कंटिन्यूटी को। ओके, सो दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस नहीं होगा। यहाँ पर तो 0 0 0 आ रहा है, जो ही यहाँ पर क्यू कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू आएगा ये कहाँ जंप करेगा, 1 पे जंप करेगा, दैट मीन्स दिस इज नॉट कंटिन्यूस एट आर माइनस एस, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज नॉट नेसेसरली ट्रू। नाउ सेकंड ऑप्शन अगर हम देखेंगे यहाँ पर बोल रहा है कि अगर जी कंटिन्यूस है तो एफ क्या कंटिन्यूस होगा एस में। तो अगर हमने यहाँ पर अभी मैंने बोला है कि एस मैंने क्यू ले लिया है, क्यू डेनस है आर में, एंड एफ में बोल रहा हूँ कि एफ एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर। नाउ लेट अस सपोज दैट एफ ऑफ एक्स में लेता हूँ यहाँ पर, से दिस इज एक्स एंड दिस इज 1 एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू से क्यू अगेन, एंड 1 के लिए मैं बोल रहा हूँ अगेन यही फंक्शन है आर माइनस क्यू, ये यहाँ पर भी आएगा ना। सो यहाँ पर क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, चूंकि जी की बात कर रहा है ना, जी इज कंटिन्यूस, g is continuous. So what is g? क्योंकि g किसके बराबर है, g of x is equal to f of x। यहाँ पर तो गिवन है, डिफाइन किया गया है फंक्शन g of x is equal to f of x for x belongs to s। So that means ये जो g of x है f of x के बराबर आ रहा है, x belongs to s, so g of x किसके बराबर मिलेगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स अगर मैंने एक्स बिलोंग्स टू एस के लिए लिया है ना, चूंकि जी कंटिन्यूस बोल रहा है कि कंटिन्यूस कहाँ पर है जी, क्योंकि जी एफ के बराबर है एंड एफ कंटिन्यूस कहाँ पर है, अभी मैंने बोला है कि क्यों पे ये कंटिन्यूस है, दैट मीन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो जी इज कंटिन्यूस, जी इज कंटिन्यूस हियर बिकॉज एक्स है यहाँ पर, एंड एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्यू। ओके, नाउ g इज कंटिन्यूस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है g इज कंटिन्यूस इंप्लाइज g इज कंटिन्यूस ऑन q। अगर g कंटिन्यूस ऑन q है, क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है ना, g इज आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, इज कंटिन्यूस ऑन q ऑब्वियसली, बट व्हाट अबाउट f ऑफ x, f इज कंटिन्यूस ऑन s, क्या f x जो है क्या ये s में कंटिन्यूस हो जाएगा, then f of x is continuous on s, and s क्या है यहाँ पर, s is equal to q। क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये जो फंक्शन है देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पर हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है ना इन s पे तो हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है। क्यों डिसकंटिन्यूटी है, अभी मैंने बोला था यहाँ पर मैंने 0 ले लिया था अभी x बिलोंग्स टू k, बट यहाँ पर मैं अगर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इस टाइम x, अभी तो हर एक x के लिए ये 0 आ रहा था, दैट मीन्स कंटिन्यूस था, बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे s, चूंकि s क्या है, क्यों है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूस है बिकॉज चूंकि ये x आ रहा है, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वो गेट डिफरेंट वैल्यू, तो यहाँ पर तो कंटिन्यूस नहीं हो जाएगा ना, बिकॉज डिफरेंस जो है इनका r एंड s में एट एवरी पॉइंट, सो देयर इज अ डिसकंटिन्यूस at every point in s। Why? Because due to the difference in the value between s and r minus s, so that is why this is again a wrong option because f is not continuous, यहाँ पर एक continuous नहीं है। Now अगर हम देखेंगे ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन 4 की बात अगर हम कर लेंगे, ये बोल रहा है कि g is identically 0। अगेन अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन लेता हूँ, s तो फिक्सड है q, एंड f जो फंक्शन में ले रहा हूँ दिस इज r टू r, f इज अ फंक्शन r टू r,
एंड मैं बोल रहा हूँ कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू से 0 एंड 1. अगेन यही फंक्शन है, x belongs to q and x belongs to r minus q. नाउ ये बोल रहा है कि g जो है g इज इक्वल टू, चूंकि g किसके बराबर है, g ऑफ x इज f ऑफ x फॉर ऑल, फॉर x belongs to s, फॉर x belongs to s. सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर ये जो g ऑफ x है, चूंकि f ऑफ x के बराबर है, x belongs to s, हियर इट इज q इज इक्वल टू s. उस टाइम क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा, दैट मीन g ऑफ x क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. तो g इज आइडेंटिकली 0, ऑब्वियसली आ तो रहा है. नाउ एंड f इज कंटिन्यूअस ऑन r माइनस s. ये बोल रहा है कि r माइनस s, एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूअस ऑन s. अगर s में कंटिन्यूअस हुआ तो s में तो कंटिन्यूअस हो रहा है, s में तो ये f इज कंटिन्यूअस ऑन s, s में तो कंटिन्यूअस हो रहा है बिकॉज s इज इक्वल टू क्यू हियर, एंड यहाँ पर 0 आ रहा है, दैट मीन्स इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन हियर. ये तो आइडेंटिकली क्या आएगा, ये तो एक कॉन्स्टेंटली 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये तो यहाँ पर कंटिन्यूअस हो जाएगा s में. देन f इज आइडेंटिकली टू 0, ये बोल रहा है कि 0 पे आइडेंटिकली हो जाएगा, बट क्या f आइडेंटिकली 0 है, बट f इज नॉट आइडेंटिकली 0 ऑन r. चूंकि r की बात कर रहा है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि आइडेंटिकली 0 हो जाएगा, तो आइडेंटिकली 0 f नहीं है, g आइडेंटिकली 0 है, f कंटिन्यूअस है ऑन s, f इज कंटिन्यूअस ऑन s, but f is identically 0, but f is not identically 0, that means this option is again false. but अगर ऐसा हुआ, अगर ये कंटिन्यूअस होगा कहाँ पे, r माइनस s, अगर ये यहाँ पर कंटिन्यूअस होता तो उस टाइम क्या मिलेगा, f is identically 0, that means this option is true. उस टाइम ये ट्रू मिलेगा, बिकॉज ये जब यहाँ पर भी कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पर भी 0 रखना पड़ेगा. फिर जब यहाँ पर भी 0, दैट मीन्स उस टाइम क्या मिलेगा, f इज आइडेंटिकली 0. सो दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज नेसेसरली ट्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर, सिंपली बोल रहा है कि नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z150 टू Z90. सो हम जानते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, Z150 टू Z90, दिस इज GCD ऑफ 150 एंड 190. तो अगर हम 150 को देखेंगे तो 150 अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, एंड अगर हमने 90 को देखा है तो ये क्या मिलेगा, 2 इंटू दिस इज 3 स्क्वायर इंटू 5. चूँकि GCD निकालना है, सो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द मिनिमम पावर जो है कॉमन दैट इज़ 2 यहाँ पर है, एंड यहाँ पर मिनिमम दैट इज़ 3, एंड यहाँ पर क्या मिलेगा 5. 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 6, एंड दिस इज इक्वल टू 30. दैट मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितने मिलेंगे, यहाँ पर 30 मिलेंगे. नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, चूंकि f एक एंटायर फंक्शन है यहाँ पर, सो अगर एक एंटायर फंक्शन है तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो एंटायर फंक्शन के लिए क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं अगर एंटायर फंक्शन है तो दैट मीन्स इट इज अ होलोमॉर्फिक, चूँकि कम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल ऑन द एंटायर कम्प्लेक्स प्लेन है ये. तो लेवलियस थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर एक एंटायर फंक्शन है इज बाउंडेड तो इट मस्ट बी अ कॉन्स्टेंट फंक्शन. तो f एंटायर है, चूँकि इसका रियल पार्ट भी बाउंडेड है और इमेजिनरी पार्ट भी बाउंडेड है, तो वैसे जब u भी लेस आर इक्वल टू के हैं एंड v भी लेस आर इक्वल टू के हैं तो बाउंडेड है. बाय लेवलियस थ्योरम भी हम बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट है, या इसको हम बाय पिकार्डिस थ्योरम भी बोल सकते हैं, चूँकि ये जो यहाँ पर है लेस आर इक्वल टू के आ रहा है इसका रियल पार्ट. सो ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये बहुत सारे पॉइंट्स क्या करेगा, चूँकि ये बहुत सारे पॉइंट इसको स्किप करेगा, ओमिट करेगा, मोर देन वन कम्प्लेक्स नंबर एज दिस वैल्यू. सो उस टाइम पे भी क्या मिलेगा, ये कॉन्स्टेंट मिलेगा. नेक्स्ट जो बोल रहा है कि ई पावर दिस इज बाउंड, अगर ये बाउंडेड है दैट मीन्स रियल पार्ट f, दिस इज आल्सो बाउंडेड, इसका मॉडल्स भी बाउंडेड होगा, इसका भी बाउंडेड होगा, दैट मीन्स बाय लेवलियस थ्योरम में क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट मिलेगा. दिस ऑप्शन इज आल्सो, ये बोल रहा है कि फॉल्स कौन है, तो दिस इज ट्रू, ये तो ट्रू है, ये भी नहीं आएगा. ये बोल रहा है कि सम, यहाँ पर है सम ऑफ दिस, दैट मीन्स दिस इज अगेन ए सम, दैट इज u प्लस v. अगर हम लेंगे दिस इज ए रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, एंड u भी, ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है. अगेन बाय दिस लेवलियस थ्योरम क्या मिलेगा, क्योंकि सम भी है दैट मीन्स u प्लस v भी क्या मिलेगा, दिस इज लेस आर इक्वल टू से m1
एंड यू वी भी क्या मिलेगा, दिस इज अगेन लेस आर इक्वल टू m1. सो दैट मीन्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज, यहाँ पर भी है बाउंडेड, यहाँ पर भी बाउंड है, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, इसका भी बाउंडेड, दैट मीन्स ये क्या मिलेगा, एफ ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट मिलेगा. अगेन ये भी ट्रू है. ये बोल रहा है कि साइन रियल पार्ट ऑफ एफ प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ. सो अगर हम फंक्शन बात कर लेंगे एफ ऑफ जेड से, लेट इट बी से रियल पार्ट दिस इज इक्वल टू जेड अगर मैंने ले लिया है, एंड z तो हम जानते हैं दिस इज सिंपली x प्लस आयोटा y, क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, x है, एंड इमेजिनरी पार्ट है y, इमेजिनरी पार्ट है y. सो दैट मीन्स ये क्या मिलेगा, दिस इज साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई. क्योंकि ये जो साइन फंक्शन होता है इट इज़ ऑलवेज अ बाउंडेड, क्योंकि अब ये रियल में आएगा, यहाँ पर तो इमेजिनरी की बात ही नहीं करेंगे हम, x भी रियल आ रहा है, y भी रियल आ रहा है. सो दैट मीन्स इट इज़ ऑलवेज अ बाउंडेड, क्योंकि साइन फंक्शन जो होता है वो ऑसिलेट करता है, क्या करता है, वो ऑसिलेट करता है बिटवीन -1 एंड 1 फॉर ऑल रियल इनपुट्स. सो दैट मीन्स ये क्या मिलेगा, बाउंडेड मिलेगा. अगर ये बाउंडेड मिलेगा, क्योंकि कितना भी बड़ा, हाउ लार्ज x प्लस वाई इट इज़ डज नॉट डिपेंड उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा फंक्शन पे, इट इज़ स्टिल बाउंडेड बिकॉज ये ऑसिलेट कर रहा है -1 to 1. अगर ये बाउंडेड है, ओके बाउंडेड है, देन एफ इज़ कॉन्स्टेंट. तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड, क्या ये कॉन्स्टेंट है, इट इज़ क्लियरली नॉट ए कॉन्स्टेंट, इट इज़ अ लीनियर फंक्शन. तो एक लीनियर फंक्शन है यहाँ पर जो कि वेरी कर रहा है एंड डिपेंडिंग ऑन द व्हाट, डिपेंडिंग ऑन द इनपुट ऑफ z. सो दैट मीन्स कॉन्स्टेंट बोल रहा है, दिस इज फॉल्स, दैट मीन्स 4 ऑप्शन क्या मिलेगा यहाँ पर, ऑप्शन 4 इज, इसको मार्क करना पड़ेगा. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, सो रिमेंबर every problem you solve brings you one step closer to mastering the subject. So stay determined and keep pushing forward. So let us discuss this question here. ये बोल रहा है कि an is be a bounded sequence in R which of the following statement is again false पूछा है, क्योंकि हम जानते हैं अगर लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर जब इक्वल आता है तो ये तो एक रिजल्ट है, ये तो ओब्वियसली रिजल्ट है, an क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है. दिस इज ट्रू ऑप्शन, क्योंकि जब भी लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर के बराबर आता है तो इट मीन द सीक्वेंस हैज़ ओनली वन लिमिट पॉइंट, इसके पास तो एक ही लिमिट पॉइंट मिलेगा, वन लिमिट पॉइंट. जब भी लिमिट पॉइंट एक मिलेगा दैट मीन्स इट मस्ट कन्वर्ज टू इट्स वैल्यू. दिस इज ट्रू ऑप्शन. अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे ये वाला, an is greater or equal to n greater or equal to 1, दिस इज सुप्रीमम एंड दिस इज सिंपली इन्फिमम. अगेन जब भी सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ द सीक्वेंस आर इक्वल हैं, सुप्रीमम इज इक्वल टू इन्फिमम, जब भी ये इक्वल होता है सो सीक्वेंस जो है, ये जो सीक्वेंस मिलेगा ये तो ओब्वियसली कैन नॉट वेरी, ये तो वेरी नहीं हो जाएगा. ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या मिलेंगे, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम. जब क्या मिलेगा, जब सुप्रीमम इन्फिमम के बराबर होता है. सो दैट मीन्स मेकिंग दिस सीक्वेंस कांस्टेंट. दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट. दीज आर द ऑब्वियस टू रिजल्ट्स. नाउ 2 and 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ये बोल रहा है कि अगर इन्फिमम एंड लिमिट सुपीरियर बराबर है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इन्फीरियर अगर इक्वल है तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा. अब कन्वर्जेंट है होगा या कॉन्स्टेंट हो जाएगा ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से हम देखेंगे, अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं एक सीक्वेंस कंसिडर करता हूँ, लेट an इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n greater or equal to 1, for all n greater or equal to 1 except for one specific index n, this is equal to capital N, where an is equal to 0. सो ये जो सिंगल डेविएशन है यहाँ पर, क्योंकि हर एक n के लिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. एक पॉइंट पे मैंने बोला है सिंपली एक पॉइंट पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है. सो ये जो सिंगल डेविएशन है इट डज नॉट अफेक्ट
द सुप्रीमम एंड इन्फीमम एंड सुप्रीमम एंड लिमिट इन्फीरियर, चूंकि ये क्या मिलेगा, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट तो नहीं हो जाएगा, सिक्वेंस इज नॉट कॉन्स्टेंट। क्यों? अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसका सुप्रीमम, व्हाट इज द सुप्रीमम, क्योंकि सुप्रीमम अगर हम निकालेंगे इसका ए एन साइज दैट एन ग्रेटर और इक्वल टू 1, क्या मिलेगा, सुप्रीमम इज ऑब्वियसली 1। नाउ व्हाट इज लिमिट, इन्फीमम, लिमिट इन्फीरियर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, क्या मिलेगा, वो भी 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा 1? बिकॉज अगर हम इसको रिमूव भी करेंगे, तो इसके जितने भी बाकी जो सब्सिक्वेंट टर्म्स आएंगे वो क्या मिलेंगे, वो तो 1 ही मिलेंगे ना। सो दैट इज वाई यहाँ पर इसका जो लिमिट इन्फीरियर भी क्या मिलेगा, वो भी 1 मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सो दैट मीन्स सुप्रीमम किसके बराबर आ रहा है, लिमिट इन्फीरियर के बराबर आ रहा है। सुप्रीमम किसके बराबर आ रहा है, लिमिट, क्योंकि ये जो सिक्वेंस है, ये जो ए एन इज इक्वल टू 1 आ रहा है, क्योंकि ये फॉर ऑल एन के लिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, एक्सेप्ट फॉर ए 1 सिंगल डिविएशन, एन इज इक्वल टू एन, एक डिविएशन के लिए यहाँ पर 0 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ ये जो एन इज इक्वल टू एन हम लेते हैं इसको, ये जो सिक्वेंस यहाँ पर क्या आ रहा है, एन आ रहा है, बट आफ्टर दिस ये अगेन यहाँ पर क्या मिलेगा, ए एन का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ये रिज्यूम करेगा अपना वैल्यू कहाँ पर, 1 1 1 1, एक पॉइंट पे 0 आ रहा है, फिर बाकी 1 1 1 1। सो दैट मीन्स ये जो एन इज इक्वल टू एन है डज नॉट इफेक्ट द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ दिस सिक्वेंस, क्योंकि हम जो लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर हम निकालते हैं फॉर लॉरेज एन। सो दैट इज वाई यहाँ पर जो ये जो सिक्वेंस मिलेगा, ये क्या मिलेगा, फिर ये बोल रहा है कि ये कॉन्स्टेंट है, ये क्या, ये कॉन्स्टेंट सिक्वेंस है, कॉन्स्टेंट तो नहीं है, बिकॉज ए एन इज इक्वल टू 1 भी आ रहा है एंड एक पॉइंट पे तो 0 आ रहा है, चाहे एक पॉइंट पे ही आएगा, आ तो रहा है, कॉन्स्टेंट तो नहीं है। दैट मीन्स दिस इज है, ये क्या मिलेगा, ये तो यहाँ पर बोल रहा है कॉन्स्टेंट ये वाला है, सुप्रीमम एंड दिस सुप्रीमम इज इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर, ये बोल रहा है कि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट तो नहीं आ रहा है। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज फॉल्स, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या है, फॉल्स है। ये बोल रहा है कि ये कन्वर्जेंट है, ऑब्वियसली ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्यों कन्वर्जेंट है, क्योंकि अगर हम इन्फीमम भी हम देखेंगे, यहाँ पर अगर मैंने से यहाँ पर -1 भी ले लिया है, -1 एक मैंने ले लिया है ए एन, एंड दूसरा मैंने ले लिया है फॉर एन ग्रेटर और इक्वल टू 1 मैंने लिया एक्सेप्ट यही ए एन इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका जो इन्फीमम भी -1 आ रहा है एंड लिमिट सुपीरियर भी क्या मिलेगा, दैट मीन्स उस टाइम में इक्वल मिलेगा, लिमिट सुपीरियर भी 1 आएगा एंड इसका इन्फीमम भी -1 आएगा एंड सुप्रीमम भी क्या मिलेगा, यही आएगा। दैट मीन्स उस टाइम क्या मिलेगा, ये कन्वर्जेंट मिलेगा। दैट मीन्स दिस इज वाई दिस इज क्या है, ट्रू है, बिकॉज एक पॉइंट पे हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं इसकी कन्वर्जेंस। एक पॉइंट पे अगर ये डिविएट हो भी रहा है तो वी कांट से दैट इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि कन्वर्जेंट हम किसके लिए हम देखते हैं, बिकॉज कन्वर्जेंस इज कंसर्नड विद द बिहेवियर ऑफ द सिक्वेंस एज एन अप्रोच इन्फिनिटी, क्योंकि जब एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी, सो दैट इज सिक्वेंस कंसिस्टेंटली विद लिमिट व्हाट, विद लिमिट 1। सो दैट इज वाई, या अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसमें तो -1 आएगा, सो दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज ट्रू एंड रिमेनिंग आर, ये भी ट्रू, ये क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड डिनोट द सॉल्यूशन टू द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिस। सो दिस इज ए कॉची-यूलर इक्वेशन। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको, दिस इज सिंपली एक्स वाई डैश होल डैश, सो दिस इज एक्स वाई डबल डैश एंड प्लस क्या मिलेगा, वाई डैश मिलेगा एंड एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स इज 1 एंड माइनस हियर इट इज 2y डैश एंड प्लस क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा y अपॉन एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 1। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एंड प्लस एक्स वाई डैश माइनस 2x वाई डैश एंड प्लस क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा y एंड दिस इज इक्वल टू x हियर। नाउ यहाँ पर जो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश एंड x वाई डैश, दिस इज सिंपली माइनस x वाई डैश एंड प्लस y इज इक्वल टू x। ना अगर हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा, d माइनस 1
d and d minus 1 and minus simply d plus 1 into y is equal to here x. So this is d square minus d square minus d plus 1 into y is equal to x. What is the auxiliary equation? This is simply m square minus 2m and plus 1 is equal to 0. So m square minus m minus m plus 1 is equal to 0. So m is equal to here m का वैल्यू क्या मिलेगा? दिस इज 1 एंड 1 मिलेगा, क्योंकि ये क्या मिलेगा? दिस इज m माइनस 1 होल स्क्वायर सिंपली. सो यहाँ पर जो इसका जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? दिस इज c1 प्लस c2, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो यूलर इक्वेशन में हम क्या करते हैं? पुट सिंपली x इज इक्वल टू ई पावर z करते हैं एंड व्हाट इज log x? log x इज इक्वल टू z. सो दैट मीन्स c1 प्लस c2 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा? z मिलेगा एंड ई पावर z, क्योंकि 1 वैल्यू आ रहा है. सो दिस इज सिंपली c1 प्लस c2 एंड z के बदले क्या मिलेगा? log x मिलेगा एंड ई पावर z इज सिंपली x. सो यहाँ पर ये दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. नाउ अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पर x अपॉन दिस इज x अपॉन सिंपली दिस इज d माइनस 1 होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू, चूंकि x किसके बराबर है? ई पावर z के बराबर है. ई पावर z अपॉन d माइनस 1 होल स्क्वायर. जब मैंने यहाँ पर 1 रखा है तो 0 मिलेगा. सो दिस इज यहाँ पर z मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड नीचे एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. अगेन 1 आ रहा है तो एक और बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एंड z स्क्वायर ई पावर z, नीचे क्या मिलेगा? आप 2 मिलेगा. सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा? सो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज z स्क्वायर? सो दिस इज log x whole square and e power z is x, so this is x upon 2. so what is the solution? total solution is complementary function plus pi. so ये डिनोट कर रहा है phi से, so हम भी लिखेंगे phi. so phi जो मिलेगा, say phi of x is equal to this is c1 plus c2 and यहाँ पर मिलेगा log of x and x plus x log x होल स्क्वायर अपॉन 2. नाउ कंडीशन रखेंगे, ये क्या बोल रहा है कि y ऑफ 1 जो कि फाई यहाँ पर वैल्यू निकाल रहा है फाई ऑफ 1. सो लेट अस सपोज हियर यहाँ पर y ही हम रखेंगे फिलहाल, तो y ऑफ x ये मिलेगा. व्हाट इज y ऑफ 1? y ऑफ 1 इज 0. सो जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे 1 यहाँ पर रखना पड़ेगा. c1 प्लस log 1 इज 0, तो ये तो 0 मिलेगा. ये क्या मिलेगा? c1 एंड x के बदले 1, ये तो सिंपली c1 मिलेगा प्लस 0 एंड x के बदले 1. जब मैंने x के बदले 1 रखा है एंड यहाँ पर log 1 इज अगेन 0, 0/2 इज 0. दैट मीन्स c1 का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. नाउ सेकंड कंडीशन इज y e पावर माइनस 4. सो दिस इज 4 e पावर 4. दिस इज इक्वल टू c1 is 0, that is c2 log what is x is here e power 4 and multiplied by x is e power 4 plus x is e power 4 log x, and here it is log x is e power 4 whole square upon 2. so this is equal to 4 e power 4 c2 log e. so this is simply 4 c2 e power 4 plus this is log e कैंसिल होगा, log e तो 1 है ना, 4 एंड दिस इज 16. सो अगर ये 16 मिलेगा तो 2 एंड नीचे 2 है तो क्या बचेगा? 8 e पावर 4. ओके, सो यहाँ से क्या मिलेगा? दिस इज e पावर 4 एंड e पावर 4. सो वी गेट 4c2 is equal to this is 4 minus 8. so c2 is equal to minus 4 upon 4, that is equal to minus 1. तो c2 का वैल्यू क्या है? माइनस 1 है. सो दैट मीन्स जो सोल्यूशन है इसने सोल्यूशन फाई से डिनोट किया है, तो फाई ऑफ एक्स जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? दिस इज c1 तो 0 है, c2 इज माइनस 1. सो दिस इज माइनस log x into x
प्लस हियर इट इज x एंड यहाँ पर log x whole square upon 2 because c1 is 0. So this is equal to, we have to find phi of e. So e यहाँ पर रखेंगे तो this is minus log e plus e log e whole square upon 2. Log e is 1. So this is simply, what is this? e किसके बराबर आएगा? This is minus e. So this is minus e and plus log e is 1. 1 square is 1. So this is e upon 2. So this is equal to minus 2e plus e upon 2. So this is equal to minus e upon 2. So that means option 1 is true. Now next अगर हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, A यहाँ पर एक मैट्रिक्स है. So and consider the symmetric bilinear form on R power 4 given UV इसके बराबर VW जो है this is equal to V transpose AW. Okay. Now that means which of the following statement is true. ये बोल रहा है कि A इन्वर्टिबल है. तो अगर हम देखेंगे क्या A इन्वर्टिबल है, सो अगर हम देखेंगे A का जो इसके अगर हम एगन वैल्यूज निकालेंगे, लेट अस फाइंड द एगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स. सॉरी एक सेकंड. इसके जो एगन वैल्यूज मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, एगन वैल्यूज ऑफ ए अगर हम निकालेंगे, दिस इज सिंपली यहाँ पर जो मिलेगा दिस इज n1111. सो इसका जो ये ब्लॉक मैट्रिक्स मिलेगा ना, तो यहाँ पर इसका जो एगन वैल्यू मिलेगा ओब्वियसली एक तो 1 मिलेगा एंड दूसरा 0 मिलेगा एंड एक और मिलेगा -1 एंड 0. दीज आर द एगन वैल्यूज. सो ये बोल रहा है कि एगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की एगन वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो दिस इज 1 0 1 एंड 0. बोल रहा है कि ए स्क्वायर एगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर इज पॉजिटिव. क्या ये पॉजिटिव है? पॉजिटिव तो नहीं है, नॉट ऑल पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर 0 एंड 0 आ रहा है ना, तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव नहीं मिलेगा बिकॉज 0 इज नॉट पॉजिटिव. पॉजिटिव अगर है तो फिर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. दैट मीन्स एगन वैल्यूज ऑफ दिस इज पॉजिटिव, दिस इज द फॉलोज ऑप्शन. ए इज इन्वर्टिबल, क्योंकि 0 एगन वैल्यू तो आएगा, इसमें आ रहा है ना, दैट मीन्स डिटरमिनेंट 0 है तो इन्वर्टिबल भी नहीं होगा. नाउ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर एंड देयर, यहाँ पर बोल रहा है कि UV इज नॉट इक्वल टू VW. अब इसमें हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक एक वेक्टर मैंने ले लिया है, लेट अस सपोज U इज इक्वल टू से दिस इज 1 1 0 0. ये मैंने एक वेक्टर ले लिया है and let V is equal to say 1 0 0 0. The main point is you have to find the counter example, that is the point. And let W is equal to say this is 0 1 0 0. अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो V है, ये W के बराबर नहीं है. V is not equal to W, so that means ये यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. V इज नॉट इक्वल टू W. ये बोल रहा है कि फॉर ऑल, हर एक नॉन जीरो वेक्टर के लिए फिर ये भी इक्वल नहीं हो जाएगा. लेट अस फाइंड इट. क्या ये पॉसिबल है, क्या ये ट्रू है, निकालेंगे. सो पहले हम क्या निकालेंगे, UV किसके बराबर मिलेगा, बाय बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज सिंपली U ट्रांसपोज AV. सो दिस इज इक्वल टू, व्हाट इज U ट्रांसपोज, दिस इज 1 1 0 0. Okay, and the matrix is 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0. here 0 0 1 1 1 1. एक तो ये यहाँ पर है. and V, what is V? V is here 1 0 0 0. now यहाँ पर जो मैट्रिक्स है, दिस इज यहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स है, दिस इज 1 क्रॉस 4 एंड दिस इज 4 क्रॉस 4 एंड दिस इज here 4 क्रॉस 1. तो यहाँ पर 1 क्रॉस 4 एक मैट्रिक्स मिलेगा एंड यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा,
1 क्रॉस 4 एक मैट्रिक्स मिलेगा. आफ्टर सॉल्विंग इट दिस इज 1 एंड यहाँ से 1 इंटू 1 मिलेगा. सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी गेट 1. हमें क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा. सिंपली इसको प्रोडक्ट करना है. यहाँ पर 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 क्रॉस 4 मिलेगा. फिर ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 क्रॉस 1, तो 1 क्रॉस 1 फाइनली एक मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1. नाउ लेट अस फाइंड UW अगर हम फाइंड कर लेंगे, दिस इज अगेन U इज व्हाट? U इज 1 1 0 0 and the matrix A, and here what is W? W is here 0 1 0 0 matrix A and this. जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस इज अगेन 1, ये भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. तो दैट मीन्स ये जो U V है ये किसके बराबर आ रहा है? UW के बराबर आ रहा है. स्टिल V इज नॉट इक्वल टू W, बट ये तो इसके बराबर आ रहा है. ये क्या बोल रहा है? हर एक नॉन जीरो वेक्टर के लिए ये इक्वल नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये बोल रहा है ना देयर एग्जिस्ट तो हो भी सकता है, बट बोल रहा है कि हर एक के लिए. मैंने एक काउंटर एग्जांपल यहाँ पे फाइंड किया है तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इक्वल आ रहा है. दैट मीन्स दिस इज अगेन अ फॉलोज ऑप्शन. ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट इज अ नॉन जीरो वेक्टर सच दैट VW इज इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई वेक्टर तो मिलेगा ही मिलेगा. जहाँ पर VW क्या मिलेगा? ये जो VW है, व्हाट इज VW ये बोल रहा है कि VW 0 मिलेगा, तो ऑब्वियसली कोई वेक्टर हम लेंगे यहाँ पर फॉर एग्जांपल 0 0 0 1, तो वहाँ पे 0 मिलेगा. ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है. ये 0 बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली 3 डिस्कार्ड हो रहे हैं तो ये तो ट्रू मिलेगा ही मिलेगा. दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज ट्रू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I think that is the last one. Let C be the collection of all sets S such that the power set of S is countably infinite. Remember ये जो पावर सेट होता है ना, पावर सेट की बात अगर हम कर लेंगे, never countably infinite. ये कभी भी countably infinite नहीं होता है. Remember this point. Why? बिकॉज अगर मैंने यहाँ पर एक C ले लिया, बोल रहा है कि C इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ S. ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, तो ले लिया है कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट. कोई भी सेट ले लीजिए जिसकी कार्डिनलिटी क्या है? n है. नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है तो इसकी कार्डिनलिटी क्या है? C की कार्डिनलिटी क्या मिलेगी? इस टाइम n मिलेगा. नो व्हाट अबाउट द पावर सेट? अगर मैंने इस P ऑफ ये बोल रहा है ना ऑफ ऑल सेट इज S, अगर मैंने अब P ऑफ S ले लिया है, इसका जो पावर सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? Obviously this is 2 power n. क्या ये 2 power n जो है, क्या ये इसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या मिलेगी? 2 power n. ये क्या बोल रहा है? पावर सेट काउंटेबली इन्फिनाइट है. अगेन दिस इज द फॉलोज ऑप्शन. नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है? देयर एग्जिस्ट इज अ काउंटेबली इन्फिनाइट सेट, तो कोई भी काउंटेबली इन्फिनाइट आप ले लीजिए. n मैंने ले लिया है, दिस इज अ काउंटेबली इन्फिनाइट. क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है काउंटेबली इन्फिनाइट तो नहीं आ रहा है, ये तो एक फाइनाइट सेट आ रहा है ना. 2 power n कुछ भी हो सकता है. लेट n इज इक्वल टू 5, 2 power 5 फाइनाइट. बोल रहा है कि काउंटेबली इन्फिनाइट, अगेन तो फॉल्स है. देयर एग्जिस्ट इज अ काउंटेबली इन्फिनाइट सेट, काउंटेबली इन्फिनाइट है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसकी कार्डिनलिटी क्या है? LF0 होता है. इसका पावर सेट, क्योंकि पावर सेट की बात कर रहा है ये, पावर सेट ऑफ S, क्योंकि S इज इक्वल टू हियर दिस, तो क्या मिलेगा पावर सेट? That means this is simply 2 power cardinality of n, so this is equal to 2 power LF0. So what is 2 power LF0? That is continuum. And what is continuum? Is this a countably infinite? No. This is what? This is uncountable. C तो uncountable है. ये क्या बोल रहा है कि countably infinite है. Again false. There exists an uncountable set. चलिए uncountable set हम लेंगे. अनकाउंटेबल सेट C अनकाउंटेबल सेट है ना. C एक अनकाउंटेबल R एक अनकाउंटेबल सेट है. इसका जो कार्डिनलिटी मिलेगा, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ R? दैट इज कंटिन्यूम C. नाउ अब इसकी पावर सेट की बात कर रहा है, S क्या कर रहा है? बट पावर सेट, दैट मीन्स 2 पावर कार्डिनलिटी ऑफ R, सो दैट इज 2 पावर C, एंड 2 पावर C इज ग्रेटर देन C. ये तो C से बड़ा है,
तो सी तो ऑलरेडी अनकाउंटेबल है, ये क्या बोल रहा है, ये काउंटेबली इनफिनाइट। सी तो ऑलरेडी अनकाउंटेबल है, ये तो उससे भी बड़ा है, तो ये कहाँ से काउंटेबली इनफिनाइट मिलेगा? दिस इज अगेन अनकाउंटेबल, अगेन दिस इज फॉल्स। दैट मीन्स देयर exists सी, that is empty, that means this is true. Are you getting my point? So thanks for watching. I hope this solution made things clear. So keep practicing, stay determined, and remember, success is just around the corner. So if this video helped, please like, share, and subscribe to my channel, Mathematics Success Hub. So thank you.